بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حبیب طارق چودھری اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں ویلکم کرتا ہوں۔ اور میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں عنایت اللہ کے قلم سے تحریر کردہ ناول شمشیر بے نیام، قسط نمبر 1۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں تاکہ جو بھی میری ویڈیو آئے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو اسی وقت مل سکے۔ تو چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ وہ مسافر عرب کے صحرا میں اکیلا چلا جا رہا تھا۔ 8 ہجری کے زمانے میں عرب کا وہ علاقہ جہاں مکہ اور مدینہ واقع ہیں بڑا ہی خوفناک صحرا ہوا کرتا تھا، جلتا اور انسانوں کو جلساتا ہوا ریگدار۔ ایک تو صحرا کی اپنی صعوبتیں تھیں، دوسرا خطرہ رہزنوں کا تھا۔ مسافر قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے لیکن یہ مسافر اکیلا جا رہا تھا۔ وہ اعلیٰ نسل کے جنگی گھوڑے پر سوار تھا، اس کی ذرا گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، اس کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں برچی تھی۔ اس زمانے میں مردوں کے قد دراز، سینے چوڑے اور جسم گٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ اکیلا مسافر بھی انہی مردوں میں سے تھا، لیکن وہ جس انداز سے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا تھا اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ شہسوار ہے اور کوئی معمولی آدمی نہیں۔ اس کے چہرے پر خوف کا ہلکا سا بھی تاثر نہیں تھا کہ رہزن اسے لوٹ لیں گے اور اس سے اتنی اچھی نسل کا گھوڑا چھین لیں گے اور اسے پیدل سفر کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کے چہرے پر جو تاثر تھا وہ قدرتی نہیں تھا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا، یادوں سے دل بہلا رہا تھا یا کچھ یادوں کو ذہن میں دفن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آگے ایک گھاٹی آ گئی، گھوڑا چڑھتا چلا گیا، خاصی بلندی پر جا کر زمین ہموار ہوئی۔ سوار نے گھوڑا روک کر اسے گھمایا اور رکابوں پر کھڑے ہو کر پیچھے دیکھا۔ اسے مکہ نظر نہ آیا، مکہ افق کے نیچے چلا گیا تھا۔ ابو سلیمان، اسے جیسے آواز سنائی دی ہو، اب پیچھے نہ دیکھو، مکہ کو ذہن سے اتار دو، تم مرتے میدان ہو، اپنے آپ کو 2 حصوں میں نہ کٹنے دو، اپنے فیصلے پر قائم رہو، تمہاری منزل مدینہ ہے۔ اس نے مکہ کی سمت سے نگاہیں ہٹا لیں، گھوڑے کا رخ مدینہ کی طرف کیا اور باغ کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ گھوڑا اپنے سوار کے اشارے کو سمجھتا تھا، جچی تلی چال چل پڑا۔ سوار کی عمر 43 برس تھی لیکن وہ اپنی عمر سے جوان لگتا تھا۔ سلیمان اس کے بیٹے کا نام تھا، اس کے باپ کا نام الولید تھا، لیکن سوار نے خالد بن ولید کے بجائے ابو سلیمان کہلانا زیادہ پسند کیا تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ تاریخ اسے خالد بن ولید کے نام سے یاد رکھے گی اور یہ نام اسلام کے عسکری روایات اور جذبے کا دوسرا نام بن جائے گا۔ مگر 43 برس کی عمر میں جب خالد مدینے کی طرف جا رہا تھا اس وقت وہ مسلمان نہیں تھا۔ چھوٹی چھوٹی جھڑپوں کے علاوہ وہ مسلمانوں کے خلاف 2 بڑی جنگیں، جنگ احد اور جنگ خندق لڑ چکا تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 610 بروز سوموار پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 24 برس تھی۔ اس وقت تک وہ اپنے قبیلے بنو مخزوم کی عسکری قوت کا قائد بن چکا تھا۔ بنو مخزوم کا شمار قریش کے چند ایک معزز خاندانوں میں ہوتا تھا۔ قریش کے عسکری امور اسی خاندان کے سپرد تھے۔ قریش خالد کے باپ الولید کے احکام اور فیصلے مانتے تھے۔ 24 برس کی عمر میں یہ حیثیت خالد کو بھی حاصل ہو گئی، مگر اس حیثیت کو ٹھکرا کر خالد ابو سلیمان مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ کبھی وہ محسوس کرتا جیسے اس کی ذات سے کوئی قوت اسے پیچھے گھسیٹ رہی ہو۔ جب وہ اس قوت کے اثر کو محسوس کرتا تو اس کی گردن پیچھے کو مڑ جاتی، لیکن اس کی اپنی ذات سے ایک آواز اٹھتی، آگے دیکھ خالد، تو ولید کا بیٹا تو ہے لیکن وہ مر گیا ہے، اب تو سلیمان کا باپ ہے، وہ زندہ ہے۔ اس کے ذہن میں 2 نام اٹک گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک نیا دین لائے تھے، اور الولید جو خالد کا باپ اور محمد اور آپ کے نئے دین کا بہت بڑا دشمن تھا۔ باپ یہ دشمنی ورثے کے طور پر خالد کے حوالے کر کے دنیا سے اٹھ گیا تھا۔ خالد کے گھوڑے نے پانی کی مشک پر اپنے آپ ہی کو رخ بدل لیا تھا۔ خالد نے ادھر دیکھا، اسے گول دائرے میں کھجوروں کے درخت اور صحرا کے جھاڑی نما درخت نظر آئے۔ گھوڑا ادھر ہی جا رہا تھا۔ نخلستان میں داخل ہو کر خالد گھوڑے سے کود گیا، امامہ اتار کر وہ پانی کے کنارے دوزانو ہو گیا۔ اس نے پانی چلو بھر بھر کر اپنے سر پر ڈالا اور 2-4 چھینٹے منہ پر پھینکے۔ اس کا گھوڑا پانی پی رہا تھا۔ خالد نے اس چشمے سے پانی پیا جو صرف انسانوں کے استعمال کے لیے تھا۔ یہ چھوٹا سا ایک جنگل تھا۔ خالد نے گھوڑے کی زین اتاری اور زین کے ساتھ بندھی ہوئی چھوٹی سی ایک دری کھول کر جھاڑی نما درختوں کے جھنڈ تلے بچھائی اور لیٹ گیا۔ وہ تھک گیا تھا، تھوڑی سی دیر کے لیے سو جانا چاہتا تھا، مگر اس کے ذہن میں یادوں کا جو قافلہ چل پڑا تھا وہ اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ اسے 7 سال پہلے کا ایک دن یاد آیا تھا جب اس کے عزیزوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس منصوبے میں خالد کا باپ الولید پیش تھا۔
वो सितंबर 622 ईस्वी की एक रात थी। क्रैश ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोते में कत्ल करने के लिए ऐसे आदमी चुने थे जो इंसानों के रूप में वहशी और दरिंदे थे। खालिद क्रैश के सरकर्दा खानदान का जवान था। इस वक्त इसकी उम्र 27 साल थी। वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश में शरीक था, लेकिन वो कत्ल करने वालों में शामिल नहीं था। इससे 7 साल पहले की वो रात गुजरते हुए कल की तरह याद थी। वो इस कत्ल पर खुश भी था, नाखुश भी। खुश इसलिए कि इसके अपने कबीले के ही एक आदमी ने इसके मजहब को, जो बुत परस्ती थी, बातिल कह दिया और अपने आप को खुदा का पैगंबर कह दिया था। ऐसे दुश्मन के कत्ल पर खुश होना फितरी बात थी, और वो नाखुश इसलिए था कि वो अपने दुश्मन को ललकार कर आमने सामने की लड़ाई लड़ने का कायल था। इसने सोते हुए दुश्मन को कत्ल करने का कभी सोचा ही नहीं था। बहरहाल इसने इस साजिश की मुखालफत नहीं की, लेकिन कत्ल की रात जब कातिल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकर्रर वक़्त पर कत्ल करने गए तो आपका मकान खाली था। वहाँ घर का सामान भी नहीं था, ना आपका घोड़ा था, ना ऊँटनी। क्रैश इस उम्मीद पर सोए हुए थे कि सुबह इन्हें खुशखबरी मिलेगी कि इनके मज़हब को जितलाने और इन्हें अपने नए मज़हब की तरफ बुलाने वाला कत्ल हो गया है। मगर सुबह वो एक दूसरे को मायूसी के आलम में देख रहे थे। फिर वो सरकोशियों में एक दूसरे से पूछने लगे, मोहम्मद कहाँ गया? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल के वक़्त से बहुत पहले अपने कत्ल की साजिश से आगाह होकर मक्का से यसरब मदीना को हिजरत कर गए थे। सुबह तक आप बहुत दूर निकल गए थे। आज 7 बरसों बाद खालिद भी मदीने की तरफ जा रहा था और इसके ज़हन पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सवार था, जिसने जंग उहद में अपने देवता हबल और देवी गज़ा के दुश्मन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन आप ज़ख्मी हालत में वहां से निकल गए थे। खालिद के जहन से यादें फूटती चली आ रही थीं। जहन पीछे ही पीछे हटते हटते 16 बरस दूर जा चुका। 613 ईस्वी की एक शाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्रैश के चंद एक सरकर्दा अफराद को अपने यहाँ खाने पर मदऊ किया। खाने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मेहमानों से कहा, ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, मैं तुम्हारे सामने जो तोहफा पेश करने लगा हूँ वो अरब का कोई और शख्स पेश नहीं कर सकता। इसके लिए अल्लाह ने मुझे मुंतखब किया है। मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम्हें एक ऐसे मज़हब की तरफ बुलाऊं जो तुम्हारी दुनिया के साथ तुम्हारी आकबत भी आसूदा और मसरूर कर देगा। इस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली वही के नज़ूल के 3 साल बाद अपने करीबी अजीज़ों को सलाम कबूल करने की दावत दी। खालिद इस महफिल में नहीं था, इसका बाप मदऊ था। इसने खालिद को मजाक उड़ाने के अंदाज में बताया था कि अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि वो अल्लाह का भेजा हुआ नबी है। हम जानते हैं अब्दुल मुत्तलिब क्रैश का एक सरदार था। अल वलीद ने अपने बेटे खालिद से कहा, बेशक मोहम्मद का ख़ानदान आला हसीयत रखता है, लेकिन नबूवत का दावा इस ख़ानदान का कोई फ़र्द क्यों करे? अल्लाह की कसम और कसम हबल और अज़ा की, मेरे ख़ानदान का रुतबा किसी से कम नहीं। क्या नबूवत का दावा करके कोई हमसे ऊंचा हो सकता है? आपने इसे क्या कहा है? खालिद ने पूछा। पहले तो हम चुप हो गए, फिर हम सब हंस पड़े। अल वलीद ने कहा, लेकिन मोहम्मद के चचाजाद भाई अली बिन अबू तालिब ने मोहम्मद की नबूवत को कबूल कर लिया है। खालिद अपने बाप की तंतिया हंसी को भूला नहीं था। खालिद को 629 ईस्वी के एक रोज़ मक्का और मदीना के रास्ते में एक नखलस्तान में लेटे हुए वो वक़्त याद आ रहा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी नबूवत को क्रैश के सरदार कबूल नहीं कर रहे थे, इस नबूवत को लोग कबूल करते चले जा रहे थे। इनमें अक्सरियत नौजवानों की थी। बाज़ मुफलस लोगों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौसले में जान आ गई और आपने इस्लाम की तबलीग तेज़ कर दी। आप बुत परस्ती के खिलाफ थे। मुसलमान इन 360 बुतों का मजाक उड़ाते थे जो काबा के अंदर और बाहर रखे हुए थे। तलुए इस्लाम से पहले अरब एक खुदा को मानते थे और पूजते इन बुतों को थे। इन्हें वो देवियाँ और देवता कहते और इन्हें अल्लाह के बेटे और बेटियाँ मानते थे। वो हर बात में अल्लाह की कसम खाते थे। कुरैश ने देखा कि मोहम्मद के जिस दीन का उन्होंने मजाक उड़ाया था वो मकबूल होता जा रहा है, तो उन्होंने आपकी तबलीगी सरगर्मियों के खिलाफ मुहाज बना लिया और मुसलमानों का जीना हराम कर दिया। खालिद को याद आ रहा था कि इसने अल्लाह के रसूल को गलियों और बाज़ारों में लोगों को इकट्ठा करके इन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत देते और बताते देखा था कि बुत इन्हें ना फ़ायदा दे सकते हैं ना नुकसान। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है जो वहदहू ला शरीक है। रसूल खुदा की मुखालफत के कायद कुरैश के 4 सरदार थे। एक तो खालिद का बाप अल वलीद था, दूसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना चाचा अबू लहब था
तीसरा अबू सफियान और चौथा अबुल हकम था जो खालिद का चचाजाद भाई था। मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा जुल्म व तशद्दुद इसी शख्स ने किया था। वो जहालत की हद तक कीना परवर और मुस्लिम कश था, इसीलिए मुसलमान इसे अबू जहल कहने लगे थे। ये नाम इतना आम हुआ कि लोग जैसे इसका असल नाम ही भूल गए हों। तारीख ने भी इसे पस्ता कद, बैंगे और लोहे की तरह मजबूत आदमी को अबू जहल के नाम से ही याद रखा है। खालिद को ये यादें परेशान करने लगीं। शायद शर्मसार भी क्रैश के लोगों ने रसूल खुदा के घर में कई बार गलाजत फेंकी थी। जहाँ कोई मुसलमान सलाम की तबलीग कर रहा होता, वहाँ क्रैश के आदमी जा पहुँचते, हलड़ मचाते। बदअखलाकी और ददकारते हुए आदमियों को रसूल खुदा को परेशान करते रहने के काम पर लगा दिया था। खालिद को ये इत्मीनान जरूर था कि इसके बाप ने मोहम्मद रसूल खुदा के खिलाफ कोई ऐसी घटिया हरकत नहीं की थी। वो 2 मरतबा क्रैश के 3-4 सरदारों को साथ लेकर रसूल खुदा के चचा अबू तालिब के पास ये कहने गया था कि वो अपने भतीजे रसूल खुदा को बुतों की तौहीन और नबूवत के दावे से रोके, वरना वो किसी के हाथों कत्ल हो जाएगा। अबू तालिब ने इन लोगों को दोनों मरतबा टाल दिया था। खालिद को अपने बाप की बहुत बड़ी कुर्बानी याद आई। उमारा खालिद का भाई था। वो ख़ास तौर पर खूबसूरत नौजवान था। वो ज़हीन था और इसमें बांकपन था। खालिद के बाप अल वलीद ने अपने इतने खूबसूरत बेटे अमारा को क्रैश के 2 सरदारों के हवाले किया और इन्हें कहा कि इसे मोहम्मद के चचा अबू तालिब के पास ले जाए और इसे कहो कि मेरा बेटा रख लो और इसके बदले मोहम्मद हमें दे दो। खालिद अपने बाप के इस फैसले पर कांप उठा था और जब इसका भाई अमारा दोनों सरदारों के साथ चला गया था तो खालिद तन्हाई में जाकर रोया था। अबू तालिब सरदारों ने अमारा को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के आगे करके कहा, इसे तुम जानते हो, ये अमारा बिन वलीद है। तुम ये भी जानते होगे कि बनु हाशिम ने जिसके तुम सरदार हो, अभी तक इस जैसा सजीला और अक्लमंद जवान पैदा नहीं किया। ये हम हमेशा के लिए तुम्हारे हवाले करने आए हैं। इसे अपना बेटा बना कर रखोगे तो तमाम उम्र फरमा बरदार रहेगा, और अगर इसे अपना गुलाम बनाओगे तो कसम है अल्लाह की तुम पर अपनी जान भी कुर्बान कर देगा। मगर तुम इसे मेरे हवाले क्यों कर रहे हो? अबू तालिब ने पूछा, क्या बनु मखजूम की माओं ने अपने बेटों को नीलाम करना शुरू कर दिया है? कहो इसकी कितनी कीमत चाहते हो? इसके एवज हमें अपना भतीजा मोहम्मद दे दो। क्रैश के एक सरदार ने कहा, तुम्हारा ये भतीजा तुम्हारी रसवाई का बायस बन गया है। इसने तुम्हारे अबाव जदाद के मज़हब को रद्द करके नया मज़हब बना लिया है। क्या तुम देख नहीं रहे कि इसने कबीले में आदमी को आदमी का दुश्मन बना दिया है? तुम मेरे भतीजे को ले जाकर क्या करोगे? कत्ल। क्रैश के दूसरे सरदार ने जवाब दिया, हम मोहम्मद को कत्ल कर देंगे। ये बेइंसाफ़ी नहीं होगी? तुम देख रहे हो कि हम तुम्हारे भतीजे के बदले तुम्हें अपना बेटा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी होगी। अबू तालिब ने कहा, तुम मेरे भतीजे को कत्ल करोगे और मैं तुम्हारे बेटे को पालूंगा, इस पर खर्च करूंगा और इसे बहुत अच्छी ज़िंदगी दूंगा। तुम मेरे पास क्या इंसाफ लेकर आए हो? मैं तुम्हें इज्जत से रुखसत करता हूँ। खालिद ने जब अपने भाई को अपने सरदारों के साथ वापस आते देखा और सरदारों से सुना कि अबू तालिब ने यह सौदा कबूल नहीं किया तो खालिद को दिली मसरत हुई थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुमने क्या बिगाड़ लिया था? अबू सुलेमान, खालिद की ज़ात से एक सवाल उठा। इसने ख्यालों ही ख्यालों में सर हिला दिया और दिल ही दिल में कहा, कुछ नहीं। बेशक मोहम्मद का जिस्म ताकतवर है, लेकिन रुकाना बिन अब्द यजीद जिसे पहलवानों को उठाकर पटकने के लिए सिर्फ जिस्मानी ताकत ही काफ़ी नहीं। रुकाना बिन अब्द अजीज रसूल अकरम का चचा था जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया था। वो अरब का माना हुआ पहलवान था। नामी ग्रामी पहलवान आए जिन्हें इसने एक ही दाव में पटक कर उठने के काबिल न छोड़ा। वो वैशी इंसान था, सिर्फ लड़ना मारना जानता था। खालिद को वो वक़्त याद आने लगा जब मुसलमानों को दिक करने वाले 3-4 आदमियों ने एक दिन रकाना पहलवान को खूब खिलाया पिलाया और इसे कहा था कि तुम्हारा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के हाथ नहीं आता, ना अपनी तबलीग से बाज आता है, ना किसी से डरता है, और लोग इसकी बातों के जादू में आते चले जा रहे हैं। क्या तुम इसे सीधा नहीं कर सकते? क्या तुम मेरे हाथों इसकी हड्डियां तोड़वाना चाहते हो? रकाना ने अपने चेहरे पर मस्त बेंसे का तासर पैदा करके तकब्बर के लहजे में कहा था, लाओ इसे मेरे मुकाबले में, लेकिन वो मेरा नाम सुनकर मक्के से भाग जाएगा। नहीं नहीं, मैं इसके साथ लड़ना अपनी तौहीन समझता हूँ। इसने अकसाने वाले आदमियों की बात ना मानी। वो किसी पहलवान को अपने बराबर समझता ही नहीं था। मुसलमानों के दुश्मन खामोश हो गए, लेकिन सोचते रहे कि रसूल खुदा को रकाना के हाथों गिरा कर आपका तमाशा बनाया जाए। मक्के के यहूदी ख़ास तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, लेकिन वो खुलकर मैदान में नहीं आते थे। वो खुश थे कि अहले क्रैश आपस में
बट कर एक दूसरे के दुश्मन हो गए। इन्हें पता चल गया कि कुरैश के कुछ आदमियों ने रकाना पहलवान को उकसाया है कि वो रसूलुल्लाह को कुश्ती के लिए ललकारे, लेकिन वो नहीं मान रहा। एक रोज रकाना रात के वक़्त एक गली से गुजर रहा था कि इसके करीब से एक बड़ी हसीन और जवान लड़की गुजरी। चांदनी रात में लड़की ने रकाना को पहचान लिया और मुस्कुराई। रकाना वहशी था, वो रुक गया और लड़की का रास्ता रोक लिया। क्या तुम जानती हो कि औरत मर्द की तरफ देखकर मुस्कुराती है तो इसका मतलब क्या होता है? रकाना पहलवान ने पूछा। कौन हो तुम? और अरमन यहूदी की बेटी, रकाना ने कहा और लड़की के कंधों पर हाथ रखकर इसे अपने करीब करके बोला, क्या मेरा जिस्म तुझे इतना अच्छा लगता है और क्या मेरी ताकत तुम्हारी ताकत ने मुझे मायूस कर दिया है? सबत ने पीछे हटते हुए कहा, तुम अपने भतीजे मोहम्मद से डरते हो? कौन कहता है? रकाना ने गर्ज कर पूछा। सब कहते हैं। सबत ने कहा, पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिराओ, मैं अपना जिस्म तुम्हें इनाम में दूंगी। अल्लाह के बेटों और बेटियों की कसम, तेरी बात पूरी करके तेरे सामने आऊँगा। रकाना ने कहा, लेकिन तूने गलत सुना है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डरता हूँ। बात यह है कि मैं अपने से कमज़ोर के साथ लड़ना ही अपनी तौहीन समझता हूँ, लेकिन तेरी बात पूरी करूँगा।